کالو کوا چھوٹا سا تھا جب اس کے پتا کو کچھ الوؤں نے مار دیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک کالو کوے کا پالن پوشن اس کی ماں نے اکیلے ہی کیا تھا۔ کالو کوے کی ماں اس سے بہت پیار کرتی تھی، مگر کالو کوا ایک نمبر کا حرامی تھا۔ وہ اپنی ماں کو ہمیشہ تنگ کرتا، نہ کہنا مانتا اور نہ ہی کوئی کام کرتا تھا۔ کالو بیٹا اٹھ جاؤ، کل سے سوئے ہوئے ہو، جاؤ اور مجھے منڈی سے آلو لا دو۔ ماں کبھی تو جی بھر کے سو لینے دیا کرو، ہمیشہ میرے پیچھے ہی پڑی رہتی ہو۔ ایسے بڑبڑاتا ہوا کالو کوا اٹھتا ہے اور اپنی ماں سے پیسے لے کر آلو لینے چلا جاتا ہے۔ آلو تو کیا لینے تھے، وہ سیدھا کبوتر کی دکان پر جاتا ہے۔ کبوتر جی 1 درجن سموسے لگا دو۔ 1 درجن؟ کالو اتنے پیسے ہیں بھی تمہارے پاس؟ جو کہا ہے وہ کرو، میں پیسے لے کر آیا ہوں۔ پھر کالو کوا وہاں سے پیٹ بھر کے سموسے کھاتا ہے اور پھر مٹھائی۔ کچھ زیادہ کھا لینے سے کالو کوے کو نیند آنے لگتی ہے۔ وہ ندی کے پاس جاتا ہے اور ایک پیڑ کے نیچے لیٹ جاتا ہے۔ بہت نیند آ رہی ہے، تھوڑا سو لیتا ہوں۔ کوا سو جاتا ہے اور اس کی ماں شام تک اپنے گھر کے باہر بیٹھی اپنے بیٹے کی راہ دیکھتی رہتی ہے۔ چڑیا میرے بیٹے کالو کو کہیں دیکھا ہے؟ ماں جی وہ ندی کے پاس سویا ہوا ہے۔ وہ پھر سو گیا؟ بیٹی میرا ایک کام کرو، واپس جاتے ہوئے اسے جگا دینا، اسے کہنا کہ اس کی ماں اسے بلا رہی ہے۔ چڑیا جب گھر جاتی ہے تو واپسی پر کالو کوے کو جگا دیتی ہے۔ کالو کالو اٹھو اٹھو، تمہاری ماں تمہیں بلا رہی ہے، جلدی جاؤ گھر۔ میری ماں تو پاگل ہے، جاؤ چڑیا تم یہاں سے، ساری نیند خراب کر دی میری۔ چڑیا چلی جاتی ہے اور کالو کوا پھر سے سو جاتا ہے۔ شام کے بعد کالو کوا گھر چلا جاتا ہے۔ کالو بیٹا آلو کہاں ہے؟ کالو کوا تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ تو گھر سے آلو لینے گیا تھا، اس لیے وہ اپنی ماں سے ہر روز کی طرح ایک نیا جھوٹ بولتا ہے۔ ماں جب میں گھر سے نکلا تو مجھے راستے میں ایک بہت ہی غریب پکشی مل گیا، میں نے وہ پیسے اسے دے دیے۔ اچھا کیا نا ماں میں نے، اب میں کیا سبزی بناؤں گی، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، رہنے دو ماں مجھے بھوک نہیں ہے۔ کوے کی ماں اب بوڑھی ہو گئی تھی، وہ تو کوئی کام کاج کر نہیں سکتی تھی اور اس کا جوان بیٹا بہت آلسی تھا۔ ایک دن ماہی چیل کالو کی ماں کے پاس آتی ہے۔ بہن میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ ضرور آنا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ چیل بہن سچ بتاؤں تو میرے پاس نہ ڈھنگ کے کپڑے ہیں اور نہ جوتا، شادی پر آؤں گی، کچھ پیسے تو لگیں گے ہی، میرا بیٹا تو کچھ بھی نہیں کماتا، اس لیے میں آپ کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتی۔ سب پکشی چیل کے بیٹے کی شادی میں شامل ہونے جا رہے تھے۔ ماں جی آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو چیل نے اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا کیا؟ چڑیا بیٹی میں کیسے جاتی، میرے پاس کیا ہے، نہ پیسے اور نہ ہی کچھ اور، ایک ہی بیٹا ہے، وہ کوئی کام کرتا ہی نہیں۔ کوے کو اس بات پر ذرا بھی شرمندگی نہ ہوتی کہ وہ اپنی بوڑھی ماں کی کوئی بھی خوشی پوری نہیں کرتا۔ ماں چیل موسی کے بیٹے کی شادی پر اچھا بھوجن ملے گا، چلو ماں چلیں۔ نہیں بیٹا میں نہیں جاؤں گی شادی میں، بھوجن کھانے کی تو چنتا ہے، یہ نہیں پتا کہ جاتے ہوئے کچھ لے کر بھی جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دن کالو کوا اڑتا ہوا جا رہا تھا، راستے میں ایک پیڑ پر طوطا بیٹھا رو رہا تھا۔ ماں تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی، ماں اب تیرے بیٹے کے پاس سب کچھ ہے، گھر ہے، پیسے ہیں، سب ہے، مگر ماں اب تو نہیں ہے، اگر تو ہوتی تو یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ کوا یہ سن کر طوطے کے پاس آتا ہے۔ یار طوطے تو ماں کے لیے رو رہا ہے کیا؟ ہاں کوے میری ماں نہیں ہے۔ طوطے میری ماں ہے مگر مجھے ماں کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسا کرو مجھ سے میری ماں لے لو۔ ماں لے لوں؟ کوئی اپنی ماں بھی کسی کو دیتا ہے کیا؟ میں کون سا مفت میں دوں گا تجھے،
मुझे कुछ पैसे दो और मेरी माँ तुम ले लो। तुम्हें माँ मिल जाएगी और मुझे पैसे, दोनों का काम बन जाएगा। तोता मान जाता है और वो कुछ पैसे कालू कौवे को दे देता है और कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ चल, मैं तुझे मेला दिखा कर लाता हूँ। दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है। अच्छा, मगर बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। पैसे हैं मेरे पास, माँ तू चल मेरे साथ। फिर कालू कौवा अपनी माँ को तोते के घर ले जाता है। लो तोते, मेरी माँ तुम रख लो, अब मैं चलता हूँ। कहाँ चले बेटे? मगर कालू अपनी माँ की बात सुने बिना ही चला जाता है। माँ जी शांत हो जाए, क्या आपको आपके बेटे ने बताया नहीं है कि वो आपको मुझे बेच गया है? ये सुनकर माँ हैरान हो जाती है। हाँ माँ, मैं अपनी माँ को याद करके रो रहा था कि कालू मेरे पास आया और कहा कि मैं उसकी माँ ले लूं। कालू बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो ना थी कि तुम अपनी माँ को ही बेच दोगे। फिर उस दिन के बाद तोता कालू कौवे की माँ को अपनी माँ समझने लगा। तोता कौवी माँ को रंग बिरंगे फल खाने को देता। माँ ये ले, ये अंगूर खाइए। माँ आप ये फल खाकर सो जाएं और रात को अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। जीते रहो बेटा, बस एक बार कल मेरे कालू को मुझसे मिलवा देना। मेरा दिल बहुत उदास है अपने बेटे के बिना। एक माँ तो माँ होती है, बच्चे जैसे भी हों, मगर माँ अपने बच्चों से नफरत कैसे कर सकती है। इसलिए कालू ने जो भी किया, मगर उसकी माँ अभी तक अपने बेटे को याद कर कर के रोती थी। दूसरे दिन तोता पूरे जंगल में कालू कौवे की खोज करता है, मगर उसे कहीं भी कालू कौवा दिखाई नहीं देता। घर वापस जाते हुए तोता अपनी कौवी माँ के लिए सोने का हार लेता है। माँ देखें, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। बेटा मेरा कालू नहीं मिला क्या? माँ मैंने उसे हर जगह देखा, मगर वो मुझे पूरे जंगल में कहीं भी नहीं मिला। ठीक हो मेरा बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। वो माँ ना सोना चाहती थी, ना चांदी, ना फल, ना दाना। उसे तो केवल अपने बेटे कालू की ही चिंता थी, जो इतना बुरा था कि अपनी माँ को ही बेच गया था। फिर एक दिन तोता कालू कौवे को ढूंढ ही लेता है। कालू मेरे साथ चलो, माँ तुम्हें बुला रही है। वो ना सोना चाहती है ना चांदी। मैं हर रोज तरह तरह के फल ला कर देता हूँ माँ को, मगर माँ खुश नहीं होती। वो हर समय तुझे ही पुकारती रहती है, ना रात सोती है ना दिन। मैंने माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, मैंने माँ बेच दी और माँ फिर भी मुझे ही याद करती है। ये कहते हुए कालू कौवा रोने लग जाता है। मेरे साथ चलो कालू। फिर तोता कालू को साथ लेकर अपने घर जाता है। अपने बेटे को देखकर कालू कौवे की माँ अपने बेटे से लिपट जाती है। कालू कौवे, ये होती है माँ जो अपने बच्चों के हर गुनाह को भूल जाती है, हर गलती माफ कर देती है। कालू मेरे बेटे, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, मुझे कुछ ना देना, मगर फिर कभी मुझे छोड़ कर ना जाना। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे एहसास हो गया है। फिर कालू अपनी माँ को अपने घर ले जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया और कबूतर एक पेड़ पर बैठे हुए थे। चिड़िया बहन, न जाने क्यों आज मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सारी रात बहुत बुरे बुरे सपने आते रहे हैं। कबूतर भैया, सपने तो सपने होते हैं, सपनों पर इतना ध्यान न दें। तभी वहाँ पर चाचा छमछम आ जाता है। कबूतर कबूतर, मैं तुम्हारी माँ वाले जंगल से आया हूँ। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, वो तुम्हें बुला रही है। ये सुनकर कबूतर रोने लग जाता है।
देखा देखा चिड़िया, मैं ना कहता था मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मुझे नींद आती भी कैसे, मेरी तो माँ बीमार है। कबूतर भैया अब आप समय जाया ना करें, जल्दी से जाएं और अपनी माँ से मिल आएं। फिर कबूतर जल्दी से उड़ता है। पहाड़ों वाले जंगल के साथ ही पूर्व वाले जंगल में कबूतर की माँ रहती थी। कबूतर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। माँ माँ मैं आ गया हूँ। बेटा बेटा कबूतर, कल से मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। आज रात से मेरी सांसें रुक रही हैं। अब मैं आ गया हूँ ना माँ, मैं आपको अपने साथ ही ले जाऊंगा। नहीं बेटा, मेरे पास समय नहीं है। बेटा ये हार मैंने अपनी बहू के लिए रखा हुआ था, ये आप रख लो। जब मेरी याद आए तो इसे देख लिया करना। ऐसा कहते हुए कबूतर की माँ मर जाती है। कबूतर बहुत रोता है। माँ मुझे माफ करना, मगर मुझे विदेश भेजने का फैसला भी तो आपका ही था। फिर कबूतर अपनी माँ का हार लेकर वापस चला जाता है। सारी रात कबूतर उस हार को देख देख कर अपनी माँ को याद करता रहा। सुबह हो जाती है। चिड़िया सुबह सवेरे ही कबूतर के घर आती है। कबूतर भैया आपकी आंखें क्यों लाल हैं और आप रो क्यों रहे हैं? माँ मर गई चिड़िया, मेरी माँ मर गई। ऐसा कहते हुए कबूतर बच्चों की तरह रोने लग जाता है। हौसला रखें कबूतर भैया, जो आया है उसे जाना तो है, बारी बारी सबने चले जाना है। ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी माँ ये हार अपनी बहू को पहनाना चाहती थी। हम आपकी माँ की ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे कबूतर भैया, हम ये हार आपकी पत्नी को ही पहनाएंगे। अब मैं जाती हूँ, मुझे भोजन लेने भी जाना है। रुको चिड़िया बहन, ये दाना ले जाएं, मेरे पास और भी दाना है। आपके आने से मेरा दुख थोड़ा कम हुआ है। फिर रानो चिड़िया कबूतर से वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को गोरी कौवी मिलती है। चिड़िया रुको रुको, मेरी बात सुनो। चिड़िया रुक जाती है। चिड़िया कबूतर की माँ बच गई या मर गई है? मैं कबूतर के घर से ही आ रही हूँ। बेचारे की माँ मर गई है, मैं अफसोस करने गई थी उसके पास। अफसोस कैसा? अगर इतना ही प्यार होता कबूतर को तो वो अपनी माँ को अपने पास ले आता। नहीं गोरी, कबूतर की माँ ने अपने बेटे को खुद ही विदेश भेजा हुआ था, क्योंकि यहाँ दाना पानी आसानी से मिल जाता है। चिड़िया मुझे भी दाना लेने जाना है, तुम ये दाना कहाँ से लाई हो? गोरी मुझे तो ये दाना कबूतर ने जबरदस्ती दे दिया, मैंने उसे मना किया मगर वो ना रुका। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब मुझे भी कबूतर के पास अफसोस करने जाना चाहिए, दाना तो मिलेगा मुझे भी। ऐसा सोचकर गोरी कौवी कबूतर के घर अफसोस करने जाती है। कबूतर हौसला रखो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। माँ मर गई तो क्या हुआ, तुम मुझे ही अपनी माँ समझ लिया करना। बड़ी बहनें माँ की तरह ही होती हैं। ये सुनकर कबूतर फिर से रोने लग जाता है। गोरी बहन, आप सबके प्यार की वजह से मुझे ये दुख भूलने में मदद मिलेगी, मुझे जीने का सहारा मिलेगा। तो और क्या, हम सब आपके साथ हैं। अब मैं जाती हूँ। अपना ख्याल रखना गोरी बहन। मगर गोरी थोड़ी देर बैठी रहती है और फिर कबूतर से कहती है, कबूतर क्या चिड़िया ने मुझसे अच्छा अफसोस किया था तुमसे? क्या चिड़िया तुम्हारी माँ मरने पर मुझसे ज्यादा दुखी थी? क्या मतलब गोरी, मैं समझा नहीं आपकी बात। उसे तो तुमने दाना दे दिया और मुझे कह रहे हो अपना ख्याल रखना। मैं भूल गया गोरी बहन, मैं भूल गया। लो ये दाना आप भी ले जाओ, मेरे पास और भी है। कबूतर ये हार कहाँ से लिया है तुमने? ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये हार बहुत सुंदर है, सोने का है ना? हाँ, ये सोने का हार माँ ने अपनी बहू के लिए रखा हुआ था। कबूतर मुझे तुम्हारी माँ के मरने का चिड़िया से ज्यादा अफसोस है। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी ये दाना कहाँ से लिया तुमने? बहुत मुश्किल से, इतने मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू बहाने पड़े मुझे ये दाना लेने के लिए। कबूतर की माँ का अफसोस करने गई थी, उसने दिया है मुझे ये दाना। तो क्या मैं भी जाऊँ कबूतर के पास उसकी माँ का अफसोस करने? नहीं कालू, कोई जरूरत नहीं है, ये दाना हम दोनों के लिए काफी है। मेरे सुंदर कालू, मुझे एक काम है तुमसे। बताओ बताओ गोरी, क्या काम है?
कालू जी, कबूतर के पास उसकी माँ का दिया हुआ सोने का हार है, मुझे वो हार चुराना है और तुम इसमें मेरी मदद करोगे। गोरी, उसकी माँ की निशानी है, इतना जुल्म ना करो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं अकेली ही चुरा लूंगी। ठीक है, मगर करना क्या होगा? फिर गोरी कालू कौवे के कान में सारा प्लान बताती है। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। गोरी और कालू जाग रहे थे। गोरी को कबूतर का हार जो चुराना था। ये रस्सी तुम मेरी पूंछ से बांधकर बाहर पेड़ पर बैठ जाना। अगर ये रस्सी जोर जोर से हिले तो इसका मतलब मैं पकड़ी गई हूँ। तुम इस रस्सी को जोर से अपनी तरफ खींच लेना। तुम चिंता ना करो गोरी, मैं ये रस्सी पूरे जोर से खींच लूंगा। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं। कालू कौवा गोरी की पूंछ को रस्सी बांध लेता है और कबूतर के घर के बाहर एक पेड़ पर बैठ जाता है। गोरी कौवी कबूतर के घर में घुस जाती है। गोरी पास जाकर कबूतर को गौर से देखती है। सो रहा है, मेरा कबूतर भाई तो सो रहा है। फिर गोरी आहिस्ता से जैसे ही कबूतर की माँ के हार को उठाती है, कबूतर की आंख खुल जाती है। वो गोरी को टांग से पकड़ लेता है। चोर चोर चोर! कालू, रस्सी खींचो। कालू! कालू रस्सी खींचता है। गोरी पकड़ी गई, गोरी पकड़ी गई। कालू अपनी तरफ जोर लगा रहा था। कबूतर ने गोरी को टांग से पकड़ा हुआ था। वो अपनी तरफ जोर लगा रहा था। गोरी कभी इधर तो कभी उधर देख रही थी और फिर पटक की आवाज आती है और गोरी कौवी की पूंछ टूट जाती है। कालू रस्सी खींचता है तो गोरी की टूटी हुई पूंछ देखकर कालू डर जाता है। किस मुसीबत में डाल दिया तुमने गोरी? अब वो अपनी पूंछ टूटने का जिम्मेदार मुझे ही ठहराएगी। बड़ी बहन तो माँ की तरह होती है, क्या एक माँ भी बेटे का हार चुरा सकती है? कबूतर, मैंने सोचा कि माँ का हार है, कहीं तुमसे गुम ना हो जाए। मैं ये हार अपने घर ले जाकर संभाल लेती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो मेरी पूंछ भी टूट गई है। अब तुम जाओ, तुम्हें चोरी करने की सजा मिल चुकी है। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें कल देखूंगा। फिर गोरी बिना पूंछ के वहाँ से ऐसे दौड़ती है जैसे कोई रॉकेट हो।